Okay, fine. So we have started with that heat chapter, right, beta? We started heat chapter. And Yes, ma'am. we're on which portion? मैम आपको होस्ट बना दिया, आई एम लीविंग द मीटिंग, है ना? कुछ हो तो जस्ट गिव मी अ कॉल. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. We were on that point of that conductivity, right, beta? We have started one experiment of iron nails. After that, we have conducted iron nails तक किया था, right, beta? उसके बाद Ma'am, after that you have said to done that diagram of that needle one. needle. Okay, fine. We'll continue from there only. Okay, ये point तक किसी को कोई भी doubt है बेटा? Conductivity. No. Conductivity. No, ma'am. Okay, the word conductivity means what and how does it work? एक बार देख लो आराम से, अगर कोई डाउट हो तो बोलो. Okay, first of all, who will explain me what is heat? What, ma'am? What is heat? Who will explain me what is heat? कौन बताएगा बेटा? चलो, I am going to share my screen here. It will take 1 or 2 minutes, okay? For uploading. Ma'am, can I try? Yes, beta. Ma'am, heat means the hot temperature by which our cells feel hot. Okay, so heat is what? One form of energy, can we say that? One form of natural energy. Energy. Yes, beta. Ma'am, it is natural energy. Yes, right, correct. Okay, we have completed till our conductors and insulator part, है ना? Conductors and insulator तक हमने complete किया था. Yes. What? And I given you one task. You have to find out 5 examples of conductors and 5 examples of insulators. So you're ready with that? We went on Yes, ma'am. convection and radiation. Yes. यहाँ पर पहुंचे थे हम, right? Convection तक complete किया था. अब radiation लेंगे हम. Fine. Radiation is not there in your syllabus, but we will see that radiation. What is radiation? Okay, and how does it work? चलो, अब सबसे पहले मुझे 5 एग्जांपल बताना है टर्न बाय टर्न. पहले कंडक्टर्स के एग्जांपल. फाइन. चलो, कंडक्टर्स के एग्जांपल कौन बताएगा? एक एक बता दो बेटा. हाँ, तीर्थ. Iron. ओके, अंश एक एग्जांपल बताओ बेटा. यस, आई कैन सी योर डायग्राम, दैट इज परफेक्ट. Metal. मेटल, परफेक्ट. Ma'am, metal. यस. Steel. Then third example. Nickel. Okay, what is Ma'am, nickel? can I? Yes, Copper. 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 Copper is also one example of metal. है ना? Can we say human being? Can we say human being? Because human being is also Yes. very good conductor of not only electricity but heat as well as. है ना? So yes. Then Steel. conductor. Plastic. Yes, Prashan. बेटा जिसने Aluminium. yes perfect. जिसने आंसर किया है बाकी को भी हम चांस देंगे. Steel. Okay. Fine. Okay. अब examples of insulator. मैं जिसको पूछूंगी वही बताएंगे. दिया, दिया. Rubber. Okay, very good. Jia. Yes, beta. Jia. Yes, ma'am. One example of insulator. Ma'am, it can be wood. Perfect. Okay. Can One I- example. Aman, one example of insulator, beta. Ma'am, what? One example of insulator. You are not audible, beta. Unmute. Just a second. Can I tell? Wait. Ma'am, can you repeat the question? Yes. One. You have to give one example of insulator. अच्छा ठीक है. वेदांत आप बताओ. आप एक बार टाइम ले लो बेटा. अमन. Plastic. Perfect. Plastic. Can I? Rutva, one example of insulator. Ma'am, metal or silver? Plastic. Okay, plastic correct. But beta, Wood. नहीं क्या? Aman. Wait. Ma'am, wood. Wait. Yes, wait. Okay. Insulator means what, Aman? Ma'am, wood.
यस वुड. ओके, इंसुलेटर यानी क्या होता है, जहां पर से आगे से हीट या इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, राइट. Can I say? In terms of heat, that can be in terms of electricity. Okay, but अगर पास हो सकती है, so that is conductor. हाँ, अब दक्ष आप बताओ. दक्ष, Fabric or cloth. fabric. Okay, what about glass? What about glass? Is that conductor or insulator? Conductor. इंसुलेटर इंसुलेटर अच्छा, Conductor. वो पास नहीं करता. कंडक्टर Conductor. और इंसुलेटर कौन बोलता है? और इंसुलेटर. किसी भी ऑप्शन में नहीं है. कितने लोग इंसुलेटर. साइड पे ना वो साइड पे? रुतबा, आप कौन सी साइड पे हो बेटा? इंसुलेटर इंसुलेटर. इंसुलेटर. बता रहे हो. ओके फाइन, तो ऐसे होगा. यस दिया, व्हाट अबाउट यू बेटा? दिया, इंसुलेटर इंसुलेटर. कौन है इंसुलेटर? ग्लास एंड फैब्रिक के बारे में बताओ. ग्लास और फैब्रिक स्पेसिफिकली. यस, Conductor. कंडक्टर. इंसुलेटर. इंसुलेटर. इंसुलेटर तो क्यों, कंडक्टर तो क्यों? Ma'am, can I? हाँ Ma'am, can I? हाँ बोलो. Ma'am, conductor because of when we touch our glass for in heat for more time it will be crack. ओके ओके फाइन. रबर इज आल्सो इंसुलेटर ना रबर हाँ, रबर तो इंसुलेटर है बेटा. व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस ग्लास एंड फैब्रिक स्पेसिफिकली, है ना? मैम वो इंसुलेटर है. हाँ, कैसे इंसुलेटर है? मैम क्योंकि वो हीट पास कर, मतलब उसमें से हीट आती है, वो गर्म नहीं होता. ओके परफेक्ट. ग्लास इज इंसुलेटर, यानी अगर ग्लास की कोई चीज होगी, आपने देखा है माइक्रोवेव में जो हम यूज करते हैं ना बर्तन, वो ग्लास के बने होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ग्लासेस, है ना. आपने देखा होगा उसकी जो ट्रे होती है, उसके जो बॉल्स होते हैं, है ना, वो ग्लासेस के होते हैं सबसे ज्यादा. प्लास्टिक के बाद में होते हैं, है ना. एक पर्टिकुलर टाइप के प्लास्टिक भी होता है, बट ग्लासेस की ज्यादा मिलेगी अगर आप माइक्रोवेव खरीद रहे हो. सो ग्लास इज अ वेरी गुड इंसुलेटर. क्योंकि उसमें से माइक्रोन्स पास कर सकते हैं. यस ओके, परफेक्ट आंसर बेटा. व्हाट अबाउट फैब्रिक? अब फैब्रिक के बारे में क्या बताओगे? मैम क्योंकि हम जब भी समर आता है हम Insulator. कॉटन के कपड़े पहनते हैं Correct, जिससे correct. हीट नहीं आती. करेक्ट. हीट नहीं आती मींस नहीं हीट नहीं आती नहीं. मतलब कॉटन can I? इजीली. हाँ यस Ma'am, बेटा. it is insulator because from it heat can't pass. अच्छा, मैंने एक एग्जांपल दिया था बेटा, स्वेटिंग वाला और ब्लैक एंड व्हाइट कलर वाला. हाँ मैम, example क्या है? ब्लैक बात करो. ब्लैक कलर में हमको गर्मी ज्यादा लगती है. हाँ दक्ष आप बताओ तो. What is the question? वो अच्छा इंसुलेटर नहीं है. फैब्रिक इज नॉट अ गुड इंसुलेटर, है ना. इट्स अ पुअर इंसुलेटर. अगर वो इंसुलेटर अच्छा नहीं है मतलब क्या अच्छा है? वो Good कंडक्टर अच्छा है. Conductor. क्यों? Conductor. क्योंकि जैसे अगर हम कॉटन का एग्जांपल लें, हम गर्मियों में कॉटन क्यों पहनते हैं? बिकॉज थरोली उसमें से हीट पास हो सके. हीट इन द सेंस क्या, कि जो बाहर से हवा आ रही है, एयर, दैट इजीली कैन गो थ्रू आउट, है ना. जैसे कि आपकी मस्कीटो नेट है, उसमें से हवा तो जा सकती है, मस्कीटो नहीं जा सकती, या पिजियन नहीं जा सकते, है ना. सो ये कॉटन का काम क्या है? इट्स गोइंग टू एब्जॉर्ब योर स्वेटिंग. स्वेटिंग यानी जो पानी है, इट्स नथिंग, स्वेटिंग इज नथिंग बट व्हाट, वाटर, मॉइस्चर. Water. वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी. बट अगर आपने पॉलिएस्टर पहन लिया तो उसके पास भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. ओके, इट्स नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब दैट स्वेटिंग. ओके, तो वहां पे यहाँ पे कौन सा फोकस होना चाहिए? इंसुलेटर. तो इंसुलेट व्हाट? हीट. हीट इंसुलेट कर पा रहा है या नहीं? तो हीट तो यहाँ पे थरोली पास हो रही है, तो वो तो पुअर इंसुलेटर हो गया, राइट बेटा. ओके चलो, अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पोर्शन से. यस रबर, दैट इज करेक्ट ऑप्शन. अंश, our next portion is radiation. Now what is radiation that we are going to see? अच्छा, रेडिएशन से क्या समझ में आता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, they are showing that this is UV radiation proof, this cream is UV radiation proof, ultraviolet rays that we are receiving from the sunlight specifically. but यही UV rays हमें कहाँ पे हेल्पफुल होते हैं? to kill some of the microorganisms. अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी जगह पे आप पास होगे जहाँ पे पब्लिक प्लेस है, तो we are going to pass through with one
यूवी रेडिएशन चैम्बर, यानी एक चैम्बर ऐसा होगा जहां पर से पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाएगी एंड देन वी कैन एंटर इनसाइड, है ना, वैसा होगा. सो दिस यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायोलेट रेज, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर killing of some of the Killing of organisms. microorganisms. बैक्टीरिया. माइक्रोऑर्गेनिज्म वर्ड यूज करो बेटा. ऑर्गेनिज्म यानी जैसे कि आपने देखा होगा कि एक लाइट वाला एक बॉक्स आता है मस्कीटो किल, इंसेक्ट उसमें फंस जाते हैं या फिर Right? मर जाते हैं. हाँ, तो वैसे ही ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये यूवी रेडिएशन. वी विल टेक सो मेनी एग्जांपल्स फॉर यूवी रेडिएशन, बट वी आर टेकिंग दिस बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट इट. अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि अगर ये रेडिएशन ज्यादा बढ़ जाए और सीधा स्किन पे जाए तो स्किन कैंसर हो सकता है. ये रेडिएशन वैसा है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट एक्सरे. जब भी हमारे बोन्स ब्रेक होते हैं तो हम एक्सरे के लिए जाते हैं ताकि हमें पता चले, है ना, कि कहाँ पे वो बोन ब्रेक हुआ है. वी आर हैविंग माइक्रोवेव. माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं, उसका नाम ही हमने रखा है माइक्रोवेव क्योंकि वो कौन से रेज छोड़ते हैं, माइक्रो. तो अलग अलग टाइप के वेव्स होते हैं, रेज होते हैं, एक्सरे, माइक्रोवेव, यूवी रे, राइट. उन सबकी अलग अलग रेंज होती है. अब रेंज यानी क्या जी बेटा, अभी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. फाइन. आई कैन सी फ्रॉम योर फेस कि मैम बहुत सारे वर्ड्स बोले जा रहे हैं एक साथ, बट आई डोंट नो. ओके, सो डोंट वरी. ये जो रेंज है इन सबकी अलग अलग एक रेंज होती है. व्हाट इज दैट रेंज? जैसे अगर मैं बोलूं कि सपोज Ma'am, अगर मेरे, हाँ, ma'am, can I say one example? यस श्योर बेटा. Ma'am, our electricity tower, from that some organism be killed. इलेक्ट्रिसिटी टावर से हम, यस, बट इट इज डिफरेंट थिंग, है ना. वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी को टच करने पर उसकी डेथ होती है, राइट. बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग यहाँ पे कि अच्छा वॉकी टॉकी सबको पता है ना, वॉकी टॉकी. यस. Yes. उसकी भी रेंज होती है. उसकी एक रेंज होती है. Yes. उसके आगे हम कुछ नहीं सुन पाएंगे, है ना. वैसे ये जो रेंज है ना, उन सबकी अलग अलग रेंज है. हम डॉल्फिन को कभी नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वो हमारी रेंज से बाहर है, वो हमें कभी सुनाई नहीं देगा. बट अगर एक बच्चा क्राई कर रहा है, क्राइंग ऑफ एनी ऑफ दैट ह्यूमन बेबी, वो जोरों जोरों से सुनाई देता है ना. Yes, वो हमारी yes. रेंज पे है. फाइन. अब अगर कुछ एनिमल्स बात कर रहे हैं ना अपनी टर्म्स में, कुछ सिग्नल्स है, जैसे आप देखते हो कि स्नेक को ले लो या फिर बहुत सारे एनिमल्स है जो हमें पता नहीं चलता कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, फिश. उनकी रेंज भी अलग होती है. फाइन. सो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दोस रेंज, क्योंकि हम यहाँ पे रेडिएशन डिस्कस कर रहे हैं. Ma'am, to See, इसकी जो know variety- about our nature. व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग बेटा, स्पेक्ट्रम. मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम वर्ड समझा रही हूँ आपको. स्पेक्ट्रम यानी जैसे आपकी रूलर है ना, जिसको आप बोलते हो, हाँ जी, आप लेके बैठे हो, राइट. अब रूलर में क्या होता है, वी कैन मेजर दैट इन हमें भूख लगी. सेंटीमीटर्स एंड इंचेस. सेंटीमीटर और इंचेस में हम मेजर कर सकते हैं. Yes, ma'am. ओके, सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, अगर हम सेंटीमीटर और मीटर्स में, वहां पे हमारे पास रेंज है कुछ 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर की. ओके, तो हम वहां पे उतने तक मेजर कर सकते हैं. नाउ कंसीडर जो भी बेटे यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं ना बैठे बैठे, उनके लिए चैट प्रोसेस ऑन नहीं रहेगा, है ना. वॉलंटरीली समझ लो कि जब लेक्चर चल रहा है 101% यू आर गोइंग टू बी हियर प्रेजेंट, मेंटली प्रेजेंट एंड फिजिकली. फाइन. क्लियर? रुतबा, व्हाई यू वर स्माइलिंग? जो भी स्माइल कर रहा था क्यों कर रहा था? हम सब हंसेंगे. No, ma'am, nothing. नथिंग. श्योर? तीर्थ श्योर? Yes. अंश, प्रसन्न, प्रसन्न बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, है ना. दैट्स अ गुड थिंग. ओके, बट अकेले अकेले मत हंसना, हम सबको जानना है किस बात पे हंस रहे हो. फाइन. ओके, तीर्थ वीडियो ऑन कर लो, हंस लिया हो तो. ओके फाइन. नाउ वी आर ऑन दैट वर्ड रेडिएशन. उसकी रेंज होती है. अगर एक्सरे की अगर समझ लो कि 10 से 12 है, ओके, इतनी है नहीं, वो 10⁻² पोर्शन में जाएगा. ओके, 10⁻² समथिंग. अगर 10 से 12 है तो 12 से 14 तक किसकी होगी, सपोज माइक्रोवेव की होगी, है ना. वैसे रेंजेस हो गए, उसमें से एक है यूवी रेडिएशन. अब ये रेडिएशन है क्या, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. समझ आया? कन्वेक्शन हमने पढ़ा, कंडक्शन पढ़ा. कंडक्शन यानी क्या, देयर विल बी कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स.
अगर आप स्टोव के ऊपर पैन रख रहे हो तो पैन और स्टोव टच कर रहा है ना, सो दैट हीट विल पास फ्रॉम योर स्टोव टू पैन, ये ट्रांसफर हो रही है। ओके, कन्वेक्शन क्या था, नीचे का लेयर पहले गर्म होगा, फिर वो क्योंकि गर्म हो गया है तो वो कैसा हो जाएगा, लाइट वेटेड, इट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग, तो वो लेयर ऊपर चला गया, अब दूसरा लेयर गर्म होगा, वो गर्म होके ऊपर चला जाएगा। ये कन्वेक्शन हमने स्टडी किया था, याद है? अगर आप एक Yes, pan ma'am. ले रहे हो, Yesterday. पानी गर्म कर रहे हो, ma'am. ओके, वो कंटेनर में पानी गर्म करने पर नीचे का लेयर, बॉटम लेयर पहले गर्म होगा, ना कि ऊपर का लेयर। सिंपल है, क्योंकि वहां पे हम हीट पास कर रहे हैं, राइट? वो गर्म होके ऊपर चला जाएगा, साइड से ऊपर जाएगा, और नीचे का लेयर फिर गर्म होना स्टार्ट होगा, वो गर्म होके ऊपर चला जाएगा। बिकॉज व्हाट इज द property of your liquid, once you are going to heat it or boil it, it will get converted from liquid state to gaseous state, है ना? That is convection. यहाँ पे convection word है। अब बचा सिर्फ radiation। क्लियर बेटा? रेडिएशन से स्टार्ट करें? Yes, Yes, ma'am. कोई डाउट है? अगर नहीं है, yes, perfect, but I can see that your diagram. जिया, what is it example? वो diagram किसके related है? Ma'am, conduction of heat by different materials. Perfect. कैसे? Different material कौन-कौन से थे बेटा? Ma'am, scale, pencil and pen. ओके, स्केल का कौन सा होगा, बताओ मुझे। What, ma'am? स्केल इज मेड अप ऑफ व्हिच मटेरियल? Ma'am, it can be rubber, then wood, steel, करेक्ट। पेंसिल का मटेरियल क्या होगा? wood, वुड। और कौन से एग्जांपल वहां पे दिया है? बीकर के अंदर आपने क्या रखा है? पानी, तो पानी। pen and water. ओके, तो वाटर किससे बना है? Nature. मॉलिक्यूल्स। hydrogen and oxygen. Hydrogen, oxygen, particles. करेक्ट। तो अब कौन सा बच गया, कौन सा मटेरियल बच गया? Pen. Pen. Air. Air. पेन किससे बनी है? Plastic and steel परफेक्ट। and ink. Plastic, steel and ink. ओके, ये सब मटेरियल अलग अलग है, जितने भी मटेरियल्स हमने लिए हैं वो सब अलग अलग है, हाँ या ना? Yes. उसकी कंडक्टिविटी भी अलग अलग होगी, कुछ Yes. insulators होंगे और कुछ क्या होंगे? Conductor. होंगे। Conductors and insulator. Ma'am, pencil is insulator, then wood scale is also insulator. ओके फाइन। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज रेडिएशन। ओके, रेडिएशन क्या है वो देखेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन बेटा? कन्वेक्शन में कोई डाउट नहीं है ना? इफ यू वांट एनी रिवीजन, लाइक वी कैन जस्ट गो फॉर इट फॉर 5 मिनट्स, हाँ या ना? Ma'am, clear. Okay, fine. We are going to comparatively study, so don't worry. We are going to see that also. Radiation का, so you are going to see that once again. Don't worry. Vimeo has become part of Mighty Oak's everyday processes. We are using Vimeo links on our website to showcase our work. We are sending clips and work. Let's talk about heat transfer. What we're really talking about here is how energy moves, specifically heat energy, and how it gets from point A to point B, whether it be here on this. Best way to understand conduction is by contact, है ना? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, यानी क्या? मॉलिक्यूल्स यानी कौन सा? सपोज गरम स्पेचुला को आपने टच कर लिया, तो स्पेचुला और आपके हाथ के बीच में कांटेक्ट हो रहा है ना? सो मॉलिक्यूलर कांटेक्ट यानी क्या? आपका हाथ भी किसी मॉलिक्यूल से बना है और आपका स्पेचुला भी, स्पून भी, ओके? So that is conduction. by thinking about an example. So here I have a metallic spoon, and I imagine holding a match underneath it. Now what we know is that that spoon is Now going to... your spoon, but don't worry if you are not able to listen, I'm going to explain everything. This spoon is metal. Here you cannot find out any of that insulator, right? So here if you are holding the spoon, this heat will transfer, right? So what will happen? That heat, just because you are also very good conductor of heat, that will pass through spoon to you, your fingers, that we can feel.
But if we are going to coat this spoon, the end of the spoon with rubber or plastic, we can hold it for a longer period. है ना? That is going to heat up, and not just the part of the spoon that's over the match, but rather the spoon as a whole. And the reason this happens is because of conduction. Energy from the flame is causing the molecules within the spoon to vibrate, and that's transferring energy from one to the next to the ये पहला लेयर जहाँ से हीट पास हो रही है वो गर्म होगा, फिर वो गर्म जो हीट है वो गर्म पोर्शन आगे हीट को ट्रांसफर करता जाएगा तब तक जब तक वहां पे कोई इंसुलेटर नहीं आता, अदरवाइज वो पूरा पोर्शन हीट ट्रांसफर It करता will जाएगा. take a full heat. Perfect. the next until the entire spoon warmed up. That heat has transferred throughout the entire material. Conduction is going to happen most effectively in solid materials. But let's not forget about convection and radiation. Let's look at convection. This is heat transfer through or as a result of density differences. Okay. Now what is convection? Convection means heat will transfer but with the help of what? Density differences. Density difference यानी क्या? जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले ले, हमने कौन सा एग्जांपल लिया था? वाटर वाला, राइट? वाटर टू gaseous molecule. So we will see that example here. Again, let's grab that match and let's think about this for a minute. I think we all know it's probably not the best idea to hold your hand above an open flame like this. And that's because a lot of the heat energy generated by that flame is going to rise. That is purely because of the process of convection. Okay, here what we can see, ये जो है वो solid material है, matchstick head. Okay, उसके अंदर कुछ ऐसा material है जो fire को catch कर सकता है. But once you are going to burn it, that solid part will get converted into what? Vapor. Vapor. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Density difference. यानी कौन सी density difference? Density means what? वो कितना dense है ना? Air अगर लोगे और water लोगे, दोनों की density अलग अलग होगी? Yes. मैम वाटर की ज्यादा होगी. Yes. You see, what's happening is the flame is causing the air to expand. And when it expands, it When we are becomes going to less. heat something, that particular thing will expand. Expands यानी क्या? अगर हम water को boil करेंगे तो वो expand होगा. Expand यानी क्या? Air के अंदर जितने भी molecules होते हैं वो free होते हैं, कहीं पे pack नहीं होते हैं. Okay? Pack in the sense molecules कैसे होंगे? चलो एक simple सा example लेते हैं. Suppose ये किसी solid चीज का structure है, fine box. तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो टाइटली पैक होंगे. ये मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे डॉट्स, वो टाइटली पैक होंगे, वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, जैसे कि ये मैचस्टिक में. फाइन. अगर कोई लिक्विड होगा, सपोज यहाँ पे हमने लिक्विड भरा, तो उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? टाइटली पैक नहीं होंगे, बट उनके बीच में थोड़ी थोड़ी ज्यादा स्पेस होगी कंपेरेटिव टू सॉलिड. फाइन. बट अगर किसी बॉक्स के अंदर हम गैसेस मॉलिक्यूल्स को भरते हैं तो वहां पे वो बहुत ही फ्रीली होंगे, फ्री अमाउंट में घूम रहे होंगे. ओके, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे. यू आर गोइंग टू स्टडी दैट लेटर ऑन इन हायर स्टैंडर्ड्स. ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता बिकॉज वो इसके रेंज के बाहर है ना. इट्स समथिंग लाइक एक रूम है जो पूरा का पूरा टाइटली पैक है बलून से, तो वहां पे हम कुछ मूव नहीं कर पाएंगे. दूसरा रूम है, वहां पे बलून्स तो है बट कैसा है कि बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, गैप है. और तीसरा रूम है जहाँ पे कुछ ही बलून्स है, तो वो सब कैसे घूम रहे होंगे हवा में आराम से जब आप स्विच ऑन करोगे फैन. फाइन. कुछ ऐसी कंडीशन होती है मॉलिक्यूल्स की. मैम एग्जांपल द स्टैंड, आयरन स्टैंड. कौन सा स्टैंड बेटा? Iron stand. Through that the molecules help करेक्ट, वो सॉलिड का एग्जांपल है. फाइन. तो समझ में आ गया कि डेंसिटी डिफरेंस कैसे होगा? लिक्विड का अलग Yes. होगा, सॉलिड का अलग होगा और गैसेस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी अलग अलग होगी. Now Than the let's take- surrounding air and therefore floats upwards, and with it goes some of that heat energy. That's what convection is all about, and this is going to occur most effectively within liquids and gases. Finally, कहाँ पे कन्वेक्शन अच्छे से होगा? लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड पे नहीं इतना अच्छे से होगा बिकॉज यू कैन नॉट हीट इट प्रॉपर्ली. let's think about radiation. Radiation is heat transfer by wave motion. Okay, we will take one example of sunlight. Now you will see कि sunlight कहाँ पे present है बेटा? sun कहाँ पे present है? Simply स्पेस.
वो स्पेस में प्रेजेंट है ना, ये हमारा सन है, ये जो ब्लैक Milky कलर है Way. पूरा बैकग्राउंड वो हमारा स्पेस है, और यहाँ पे क्या है हमारा प्लेनेट अर्थ, राइट, ये प्लेनेट अर्थ है। अब ये सन रेडिएशन आ रही है, वो ट्रैवल करके कहाँ से आ रही है, स्पेस से, बट स्पेस में तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एयर ही नहीं है, बट स्टिल इट्स गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम दिस स्पेस। स्पेस को बोलते क्या है, स्पेस मतलब कि नथिंग इज प्रेजेंट, है ना, देयर यू विल नॉट फाइंड आउट एनीथिंग। जैसे हमारा वैक्यूम फ्लास्क होता है, वहां पे हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, सारी एयर, सारे मेटल्स, एटमॉस्फेयर को रिमूव कर देते हैं, इसलिए आपका ठंडा पानी ठंडा रहेगा और गर्म पानी गर्म, राइट। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन, इट कैन ट्रैवल थ्रू द स्पेस, एंड वो एटमॉस्फेयर में भी काम कर सकता है। यू नो दैट कि हमारा पूरा अर्थ एक एटमॉस्फेरिक लेयर से कवर्ड है, तो वो वहां से भी ट्रैवल करके लैंड तक पहुंच सकता है। सो व्हाट इज दैट, इट्स ट्रैवलिंग विद द हेल्प ऑफ वेव। कौन से मोशन से वो कवर करेगा, वेव से। अब ये जो है वो लिनियर मोशन होगी, बट वेव कैसी होगी, वेव कुछ ऐसी होगी, है ना, जैसे पानी की लहर होती है या हवा चलती है, राइट। सो दैट इज हीट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ वेव मोशन, वेविंग मोशन में ट्रांसफर होगी। Let's pull that flame up one more time. I think we know that because of convection, heat is going to rise, but it's also going to travel outwards in the form of waves of energy, electromagnetic waves. And that's the third type of heat transfer. Radiation is really interesting in that it doesn't need a material It means for it doesn't require any material in between. उसको बीच में कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। it to travel. So this can occur out in open, empty space. In fact, this is how energy travels from Earth's sun to the surface of the Earth. And so if we look back, we have our three types of heat transfer: conduction, convection, क्लियर हो गया बेटा? कंडक्शन, कन्वेक्शन, ma'am. रेडिएशन, इज दैट क्लियर? डाउट नहीं है यहाँ तक कोई, राइट? वीडियो इज नॉट विजिबल, मिथुआ बेटा, फॉर अदर स्टूडेंट इट वाज विजिबल और नॉट? I'm visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible and audible. Okay beta, it may be possible sometimes if my band speed will be highest now at 100 mbps, but you are using that mobile data, no, it will take little bit time for that uploading, है ना? Okay, so we will continue now with what, next portion. Radiation तक clear हो गया, so now we'll take next portion. जब आप वीडियो प्ले कर रहे हो तो वो वीडियो का साउंड इको हो रहा है। Okay बेटा, that's why I'm explaining everything. Okay, अगर sound नहीं आ रहा है सिर्फ आप मेरी आवाज पे ध्यान दो, I'm going to explain you. Fine बेटा? ओके मैम। and radiation. And it's important to know the key word that goes with each one. For convection, it's going to be density differences. For conduction, Okay, so now next part is breeze. Now this is important. Okay, what is breeze? We will start with that breeze. Fine. People, those who are living in coastal areas, experiencing the interesting phenomena. What is that phenomenon? Phenomenon means natural process. Okay, like breeze. During the day, land gets heated.
फास्टर देन दी वाटर। दिन के टाइम में हमारी जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म होगी, है ना, कंपैरेटिव टू अवर वाटर। Why and what it's going to cause, we are going to discuss. The air over the land becomes hotter because सबसे पहले कौन गर्म हो रहा है? लैंड। तो उसके ऊपर की जितनी भी एयर होगी वो क्या होगी? गर्म होगी, right? And you know that if we are going to heat something, if we are going to provide heat somewhere, it's going to start rising up. वो लाइटर बन के एक्सपांड होना स्टार्ट कर देगी। एक्सपांड यानी क्या? वो प्रॉपर्टी किसकी है? रेडिएशन। रेडिएशन की है? नो बेटा, अगर हम किसी चीज को बॉईल करेंगे, अगर हम किसी चीज को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। इट कैन बी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैसेस फॉर्म। इट मींस अगर हमारे पास आइस क्यूब है, सिंपल एग्जांपल, यू आर हैविंग वन कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर आपने आइस क्यूब्स ले लिए बहुत सारे, फाइन। अब आप वो कंटेनर को स्टोव के ऊपर रख रहे हो, तो आपके आइस क्यूब्स अभी है वो कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। अगर आप उसको गर्म करने जाओगे तो वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगे? लिक्विड में। और अगर वही लिक्विड को आगे और गर्मी दोगे आप 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो पानी बॉईल होके किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? गैसियस फॉर्म, है ना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड में से वेपर में, है ना। तो 3 स्टेजेस हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, गैसेस मॉलिक्यूल। तो जब किसी चीज को आप हीट प्रोवाइड करते हो तो वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा? आइदर लिक्विड और गैसेस फॉर्म में, यानी वो एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड यानी अब तक सॉलिड क्यूब्स जो थे वो एक ही स्पेसिफिक शेप में फिक्स थे, है ना, उतना ही उसका शेप था। पर जैसे ही आपने उसको मेल्ट किया तो वो पूरे लिक्विड बन गए, उसका एक शेप हो गया। लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसके पास कोई शेप नहीं है, जिस कंटेनर में डालोगे उसका ही शेप ले लेगा। और गैसेस मॉलिक्यूल की क्या है? वो तो फ्रीली मूव करता है। गैसेस कैसे होते हैं? ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, हाँ, उसका कोई शेप दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। तो उसको आप हीट प्रोवाइड करोगे तो वो एक्सपांड होगे। एक्सपांड यानी क्या? स्प्रेड करेंगे, सिंपल। अगर अभी मैंने यहाँ पे डीओ क्लिक किया, है ना, तो इजीली उसकी स्मेल स्प्रेड होगी, हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना बेटा? व्हाट इज एक्सपांशन? एक रूम के कॉर्नर में अगर आपने अपनी इंसेंस अगरबत्ती को जलाया तो बाकी पूरे घर में आएगी उसकी स्मेल, है ना। एक्सपांशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, मतलब हवा में फैलना सब कुछ। यस। सो व्हाट इज अवर पॉइंट? सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो दिन के टाइम में जो कोस्टल रीजन होते हैं वहां पे लैंड जल्दी गर्म होगी, एंड दैट लैंड, उसके ऊपर की जो एयर है वो भी, राइट, एंड इट विल राइज अप। द कूलर एयर फ्रॉम द सी, उस टाइप पे सी कैसा होगा? ठंडा। उसके ऊपर कैसी एयर होगी? कंपैरेटिवली ठंडी। कंपैरेटिवली ठंडी किसके कंपैरेटिवली? लैंड की कंपैरेटिवली। हम ये कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? डे टाइम की बात कर रहे हैं, फाइन। एंड दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, that the cooler air from the sea, it will rushes in towards the land side, यानी कुछ ऐसा। अगर ये लैंड है जहाँ पे हम रह रहे हैं, या फिर कंसिडर करो कि ये ब्लू कलर है, तो ये हमारे वेव्स है, फाइन। ये हमारा सी है और यहाँ पे हमारे लैंड एरिया है, ये हमारा लैंड एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, और ये कोस्टल रीजन, फाइन। अब ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होगा? लैंड सबसे ज्यादा गर्म होगी, फाइन। और उसके ऊपर जितनी भी एयर प्रेजेंट है वो कैसी होगी? इट विल स्टार्ट हीटेड। अगर हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि वो एक्सपांड होगी। अब एक्सपांड यानी क्या? वो स्प्रेड हो जाएगी यहाँ से। समझ में आ रहा है? अब at that time our sea will be cooler, है ना। sea कैसा है? कूलर। अब वहां पे कूल एयर है, तो कूल एयर जो हमारी प्रेजेंट है यहाँ पे ओशन के ऊपर, वो कहाँ से कहाँ ब्लो होगी? डाउनवर्ड टू अपवर्ड। फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड तो है ही, बट इट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कूलर रीजन टू हॉटर रीजन, यानी ओशन से हॉट रीजन, कहाँ पर? लैंड तक वो जा रही है। इट विल गो डे टाइम में, ओके। यानी अगर वो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड
moves towards the sea, और hot air कहाँ से कहाँ जा रही है? मैम Hot हॉट air एयर कहाँ से कहाँ जा रही है? वो Land ओशन area to ओशन टू लैंड्स। बहुत ही सिंपल है बेटा, ये बहुत ही सिंपल है। I'll give you one example. पहले ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? अभी ओशन कूल है एंड लैंड वार्मर है, ओके? तो यहाँ पर से गर्म हवा ओशन तक जा रही है और यहाँ पर से ठंडी हवा लैंड तक जा रही है। एक सिंपल एग्जांपल, जब आप किसी हिली स्टेशन को विजिट करते हो जहाँ पे आपकी टेम्परेचर 0 डिग्री है सपोज, तो बाहर ठंडी है बट आपका बॉडी टेम्परेचर है वो सपोज मेंटेन हुआ है 37 डिग्री के अराउंड। तो आप जब एयर ब्लो करते हो आउटसाइड तो हम देख सकते हैं वो, क्यों? क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है ना? एक कूल एयर है और यहाँ पर जो हम बॉडी से बाहर निकल रहे वो वार्म एयर। तो अगर मैं यहाँ से एयर ब्लो कर रही हूँ, सो फ्रॉम माई माउथ टू दैट सराउंडिंग एरिया वो पास होगी वार्म एयर। सिंपल है, मैं ब्लो एयर कौन सी कर रही हूँ? वार्म एयर को, है ना? हाँ या ना? वैसे ही जो रीजन गर्म होगा वो गर्म हवा ब्लो करेगा उस साइड पे, और जो ठंडा होगा वो दूसरी साइड पे ठंडी हवा ब्लो करेगा। इतना क्लियर हुआ? ओके। यस मैम। अगर वो लैंड से ओशन तक जाता है तो वो लैंड ब्रीज हो गया, और अगर वो ओशन से लैंड तक जाता है तो वो सी ब्रीज हो गया। क्लियर? अब ब्रीज क्या है? ब्रीज एयर ऐसे मस्त लहराते हुए जा रही है, उसको ब्रीज बोलेंगे। जेंटली मूविंग एयर जिसको हम ब्रीज बोलेंगे, है ना? अभी जो हवा चलती है, बट जिस टाइम पे हमने क्या फेस किया था अभी थोड़े दिन पहले? टॉकते स्ट्रोम, है ना? उस टाइम पे वो जेंटली तो मूव कर ही नहीं रहे, वायलेटिंग वन। अगर वायलेटिंग होती है दैट इज अवर स्टॉप। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? वन इज जेंटली मूविंग एयर दैट इज ब्रीज। ब्रीज की डेफिनेशन समझ में आ गई? अगर वो वायलेटली मूव कर रही है ना, इट कैन बी डिस्ट्रॉइंग, इट कैन डिस्ट्रॉय द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो वो क्या हो गया? स्टॉप। क्लियर? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? ब्रीज क्या है? बहुत ही इजी एग्जांपल एक और, गर्मियों में हम एयर कंडीशनर यूज करते हैं। जिस रूम में अभी एसी चल रहा है वहां पे टेम्परेचर सपोज 17 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस है, बट बाहर ऑलरेडी कितना 43 डिग्री चल रहा है, तो वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जैसे ही आप डोर ओपन करोगे कौन सी ब्रीज कहाँ पे जाएगी? आपके ठंडे रूम से ठंडी हवा बाहर जाएगी और गर्म रूम से गर्म हवा अंदर आएगी, है ना? तो समझ लो कि जो ठंडा है एट द डे टाइम वो हमारा ओशन है, और जो गर्म है वो हमारी लैंड है, ठीक है? तो अगर ठंडी हवा से वो गर्म हवा तक यानी लैंड तक जाता है तो दैट इज अवर सी ब्रीज। अगर लैंड से वो जा रही है, मूव कर रही है, तो लैंड ब्रीज। डाउट है कोई उसमें? नो मैम। श्योर? समझ में आ गया बेटा? यस तो अब एक मैम। वीडियो देखेंगे इसको समझने के लिए, विजुअली देखने के लिए व्हाट एग्जैक्टली लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज इज। It's a sunny day at the beach. ओके, अब एक बात याद रखना, जो नाम दिया है उसी साइड पे होगा। अगर सी ब्रीज बोल रहे हैं तो सी से वो कहाँ जा रहा है? लैंड तक। अगर लैंड ब्रीज बोल रहे हैं तो लैंड से वो किसी और जा रहा है, कहाँ तक? सी तक। दैट्स इट। As the sun rises, the land warms up faster than the water does. This causes the air of the land यहाँ पे रेड कलर क्यों दिखाया है? क्योंकि यहाँ पे ये लैंड गर्म हो रही है, ओके? वो गर्म है to also warm up. Warm air, being less dense, expands and rises, leaving an air. Now this is important. ये कंसेप्ट में सिर्फ यही चीज समझिए, जब भी एयर को हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ओके? कंपैरेटिवली लिक्विड एंड सॉलिड area of low जब pressure. उसकी डेंसिटी कम होगी तभी वो एयर राइज अप कर पाएगी, है ना? अगर वो भारी होगी तो नीचे रह जाएगी,
बलून्स क्यों हवा में जा सकते हैं? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है ना? अगर वही चीज हम वुडन ब्लॉक को अगर हवा में फेंके तो क्या होगा? वापस आएगा अपने सर पे, क्योंकि बिकॉज उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर किसी चीज की डेंसिटी वहां पे कम है तो वहां पे प्रेशर कैसा बनेगा? प्रेशर भी कम होगा क्योंकि डेंसिटी भी कम है। ओके। Meanwhile, the air over the ocean is cooler. Cooler, denser air अब हमने sinks over the cool air को water, कैसे creating दिखाया है? ब्लू कलर से, क्योंकि वो ज्यादा डेंस है कंपैरेटिवली Ma'am? अवर वार्मर एयर। यस बेटा। Ma'am, the video voice is echoing. इको कर रहा है ना, डोंट वरी, मैं खुद एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। आपको सिर्फ इमेज दिख रही है बेटा? Yes, ma'am. हाँ, बस इमेज पे आप फोकस करो। अब जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा है वो इजीली एयर के अंदर राइज अप नहीं कर पाएगी, है ना? वो राइज अप नहीं कर पाएगी, यानी उसका वेट ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि वो भारी है ना? तो वहां पे प्रेशर कैसा बनेगा? हाई प्रेशर। बहुत ही सिंपल है बेटा। आई गिव यू वन एग्जांपल। अगर मैं अभी मोबाइल को यहाँ से लिफ्ट अप कर रही हूँ तो मेरे लिए वो बहुत ही इजी है। अगर अभी मुझे 50 kg का कुछ दे दो आप उठाने के लिए, सो यू कैन सी दैट कि वो कितना डेंस, यानी डेंसिटी उसकी कितनी ज्यादा हो जाएगी, है ना? प्रेशर मुझ पे बढ़ जाएगा, मेरे हाथों पे प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। बट अगर मुझे बलून दे दो, मैं 100 बलून भी 2 हाथों में आराम से उठा लूंगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो मेरे हाथों पे प्रेशर कम आएगा। समझ में आ गया? फंडा समझ में आया बेटा? हम ये डे टाइम Yes. creating an area of high pressure. The differences in pressure and air temperature create a convection current. अच्छा, यहाँ पे एक हम हिंट याद रखेंगे, लैंड फॉर एल, है ना? लैंड वर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा? L. एल से स्टार्ट होगा। तो हम Yes. यहाँ पे प्रेशर के लिए क्या याद रखेंगे? प्रेशर के लिए एल फॉर लो प्रेशर और लेस डेंस, है ना? कह सकते हैं हम ऐसा? Yes. यहाँ पे क्या है? एल मीन्स लैंड। Land. लैंड इज इक्वल टू एल फॉर, और क्या होगा? प्रेशर या फिर लेस डेंसिटी। प्रेशर Less density. एंड डेंसिटी दोनों कम हो गए। ओके। और यहाँ पे एच, एच यानी क्या? हाई। High. हाई क्या? बट यहाँ पे ओशन वो एच नहीं है। ओके, सी और ओशन दोनों एच और ओ से स्टार्ट होते हैं, बट एच फॉर हाई। हाई क्या? डेंसिटी एंड High density. एंड प्रेशर। ठीक है बेटा, ये नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड दिस। अब होगा क्या जब डे टाइम होगा? एट द टाइम Warm air over the land is replaced by cool ocean air. This air is warmed by the land and rises, and the cycle continues. Winds that blow from the sea to the land are called sea breezes. At night, the convection current reverses. After the sun has अब जो डे टाइम पे हो रहा था वो उल्टा हो जाएगा। क्यों? आप देखोगे कि ये समर सीजन में रात को ठंडी हवा, ठंडी इन द सेंस कि अच्छे से हवा चलती है। ओके, वो बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती है, बट हाँ हवा चलती है। फाइन। वो सेम चीज डे टाइम में अलग हो जाएगा। डे टाइम में पूरा वो शांत हो जाएगा। अब नाइट टाइम में क्या होता है? set, the land cools more quickly than the water. Therefore, the air above the land also cools down. Cool air, being more dense, presses down over the land, creating an area of high pressure. अब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कौन ठंडा हो रहा है? लैंड धीरे धीरे ठंडी हो रही है, टेम्परेचर will कम be हो रहा है cold. बिकॉज सन नहीं है वहां पे, राइट? और ओशन जो है वो धीरे धीरे जो गर्म हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ सन। ओके, तो यहाँ पे अब उल्टा हो रहा है। कौन कूल हो रहा है? आपका लैंड, क्योंकि वो कूल है तो वो डेंस हो जाएगा। एंड एच फॉर हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी, और ये जो है वो लेस प्रेशर एंड लेस डेंसिटी। Meanwhile, because water cools down slowly, the air over the ocean is still warm. ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सन प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे, राइट? बट
पानी जो है वो गर्म होने में टाइम लेता है कंपैरेटिवली लैंड, इसलिए दिन के टाइम में सबसे पहले कौन गर्म हो गया था? लैंड। और उस टाइम पे पानी भी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, बट कैसे? स्लोली एंड ग्रेजुअली। फाइन। तो अब वो जो गर्म है पानी, वहां पे वार्म एयर बनी है उसके ऊपर जो एक्सपांड होगी, यहाँ पे प्रेशर भी लेस होगा और डेंसिटी भी कम होगी। Warm air, being less dense, expands and rises, leaving an area of low pressure over the water. At night, cool air over land moves towards lower pressure over the ocean. This air is warmed by the water and rises, and the cycle continues. Winds that blow from the land to the sea are called land breeze. अगर winds land से ocean तक जाते हैं तो that is land breeze, अगर ocean से land जाते हैं तो sea breeze। ocean breeze नहीं बोलते हम, sea breeze बोलते हैं, दोनों सेम ही है। ओके, क्लियर हो गया? अब जैसे ही सुबह स्टार्ट होगी और सन रेज बढ़ेंगे, सनलाइट बढ़ेगी, ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल है, एक पानी है और एक लैंड है। अब पानी धीरे धीरे गर्म होता है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना। 100 डिग्री पे अगर बॉईल करना है तो वो धीरे धीरे होगा, राइट? वैसे ही यहाँ पे लैंड इजीली गर्म हो जाता है, तो फिर से वही साइकिल कंटिन्यू होगा। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, क्लियर? कोई भी डाउट है बेटा उसमें? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अगर आपको 2 से ज्यादा मार्क्स में पूछे, डायग्राम बना दो। कैसा? सिंपल सा। आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली। इससे क्या होगा, आगे टीचर को एक बार क्लियर में समझ में आ जाएगी कि स्टूडेंट को पता है एग्जैक्टली व्हाट इज इट। ओके, फिर थियरी आराम से लिख लो, आप जैसे आपके वर्ड्स में जैसे लिखनी है लिख लो। फाइन। सिंपली अगर मुझे दिखानी हो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, अगर आपके पास कलर्स नहीं है, कंप्लीटली फाइन, आप सिंपली कैसे दिखाओगे? वेव्स दिखा दो। ये हमारा सी है और ये हमारा लैंड है। फाइन, थोड़ा सा ग्रास दिखा दो, ये हो गया आपका लैंड ब्रीज। यहाँ पे लिख देंगे हम लैंड, आप अच्छे से लिख लेना, और ये हो गया हमारा सी, राइट? अब हमारे पास क्या है? सन एट द टाइम ऑफ डे, तो हम लिख लेंगे डे टाइम। डे टाइम में क्या होगा, या फिर नाइट टाइम में क्या होगा। डे टाइम नाइट टाइम नहीं भी लिखना है तो सिंपली अभी हम क्या दिखाएंगे, डे टाइम में क्या होगा, लैंड सबसे ज्यादा गर्म होगा, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे वेपर, है ना। ये अभी क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। और अगर एयर लैंड से सी तक जा रही है तो वो हो जाएगी लैंड ब्रीज, ये हो गया हमारा लैंड ब्रीज। और अगर सी से लैंड तरफ जा रही है तो वो क्या हो गया हमारा सी ब्रीज। सिंपल। ये हो गई हमारी सनलाइट, यहाँ पे लिख लो सन। फाइन। अगर अब नाइट टाइम दिखाना है तो सिंपली इसको हम मून बना देंगे, ये हो गया हमारा मून। रात को, रात को अब क्या होगा, अब लैंड गर्म नहीं होगा, यहाँ पे क्या चीज गर्म होगी, व्हाट इज दैट? अब क्या गर्म होगा? ओशन। गर्म नहीं होगा, बट धीरे धीरे हमारा पानी जो गर्म हो रहा था वो अभी वार्म हो रहा है, यानी ये वार्म हो जाएगा। अब जहां पर वार्मिंग हो रहा है वहां पे हम एच लिखते हैं, यानी हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। और जहां पर वो गर्म नहीं हो रहा है वो एल लिखते हैं, लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी। हो गया क्लियर? इतना अगर आप ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मैंने क्या बताया था, अगर साइंस में किसी डायग्राम में हम डॉट भी रखते हैं ना, तब भी हम उसको लेबल करेंगे कि ये डॉट क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ लेबलिंग करना है। क्या लेबल करना है, ये सन है या मून, ये डे टाइम है या नाइट टाइम, कहाँ पे हाई प्रेशर है, कहाँ पे लो प्रेशर, और कौन सा लैंड है, कौन सा सी है। दैट्स इट। हो गया? इजी है, बहुत इजी है। मुझे कितना टाइम लगा, 5 मिनट भी लगी क्या उसको ड्रॉ करने में? उसको हमें ड्राइंग की तरह परफेक्ट ही बनाना है। सिंपली हाथ में पेंसिल ले लो, सी बना दिया, लिख लिया दिस इज सी, रफली लिखना है, ठीक है। रफ यानी इतना भी रफ नहीं कि टीचर को समझ में ना आए, बट उसको परफेक्टली नहीं करना है बेटा, जैसे हम ड्राइंग में करते हैं। फाइन। लैंड लिख लो, वहां पे लेबल कर लो दिस इज माय लैंड, है ना। अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, सी से लैंड जा रहा है, सी ब्रीज, लैंड टू ओशन, लैंड ब्रीज। मैम कलर फिल करना है उसके अंदर? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। साइंस में हम कलर फिल नहीं करेंगे। अगर अभी आप अपने नोट्स बना रहे हो तो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, बट एग्जाम में हम ये सारी चीजें यूज नहीं करते, राइट बेटा? वरना पता चला कि बाकी का पीछे का पूरा पेपर रह गया, जस्ट बिकॉज़ वी वर सो बिजी इन मेकिंग द ड्राइंग ऑफ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। परफेक्टली बना रहे हैं। हमें एक सी लेवल टाइप बनाना है।
मैंने अभी ये कैसे बनाया रेडियस का डायग्राम बनाना है। जी हाँ, अभी आपने मुझे देखा ना व्हाइट स्क्रीन पे, व्हाइट बोर्ड पे मैंने कैसे डायग्राम बनाया। मैंने सिंपली यहाँ पे सी बना दिया और लिख लिया ये सी है, यहाँ पे सीधी आपको ये लाइन है ना। जैसे मैंने डायग्राम फिर से एक बार दिखा दूं कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। जी हाँ, यस ओके। ये आपका पेपर है, फाइन। आपके हाथ में पेंसिल है ऑलरेडी, ये आपने ड्रॉ कर लिया सी, और ये आपने यहाँ पे लिख लिया ये मेरा सी है, फाइन। ये मैं अभी पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लिख रहा है ऐसी है। ये हो गया मेरा लैंड, ये मेरा लैंड है। यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ग्रास ड्रॉ कर दिया, फाइन। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगी सनलाइट, सनलाइट आपने ड्रॉ कर दी, ये रेज दिखाओगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सनलाइट है। इसलिए हम सारी चीजें क्या करते हैं, प्रॉपर्ली लेबल करते हैं। दिस इज सन। अगर सन है मतलब क्या, डे टाइम है। डे टाइम है तो वहां पे कौन गर्म होगा सबसे पहले, लैंड। तो मैंने गर्मी दिखाने के लिए यहाँ पे ये इवेपोरेशन दिखा दिया। यहाँ पे कैसी एयर बन रही है, ये एयर वार्म है, वार्म एयर, ठीक है, क्योंकि डे टाइम है तो लैंड पहले गर्म होगा, और ये कैसा होगा, कूल होगा। तो यहाँ पे हम इवेपोरेशन नहीं दिखा रहे, ये एयर राइज अप नहीं हो रही है, फाइन। वार्म अप यानी यहाँ पे एच दिखाना है, एच यानी क्या, हाई प्रेशर है यहाँ पे और हाई डेंसिटी है, सॉरी लो प्रेशर है यहाँ पे और लो डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पे एयर गर्म हो रही है, फाइन। दिस इज माय मिस्टेक, हम इसको क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, लो प्रेशर लो डेंसिटी, और यहाँ पे कैसा होगा, हाई प्रेशर हाई डेंसिटी। हाई प्रेशर हाई डेंसिटी, ये नाइट टाइम में होगा। अब यहाँ पे ये गर्म हो रहा है, तो ये चीजें लेबल करने में कितना टाइम लगा बेटा, देखो आपने नोट किया, 2 या 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे ही आप सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करोगे, दैट्स इट, और उसको लेबल कर दोगे, वेदर इट्स फॉर डे टाइम और वेदर इट्स फॉर नाइट टाइम। मैम हमें डे टाइम का बनाना है। हमें दोनों टाइम का बनाना है। ओके मैम। मैम यस बेटा, yes, what's your question? Ma'am, I want to show something. Yes beta, Ma'am, now we have to make that diagram. हाँ चलो स्टार्ट करो, 4 मिनट है, 4 मिनट तो बहुत है। सिर्फ एक पेन एंड पेपर ले लो, डे टाइम में बना दो, नाइट टाइम में बना दो। Ma'am, when you are showing, I have made myself. Can I show? हाँ बेटा, हाँ ओके, आई एम पुटिंग यू ऑन स्पॉटलाइट बेटा। दिया चलो जल्दी से बना दो, वी आर हैविंग 4 मिनट्स। ओके यस अंश, आई विल कम बैक टू यू। दिया आई एम पुटिंग यू ऑन स्पॉटलाइट बेटा, लेट मी सी योर डायग्राम ऑफ कन्वेक्शन कंडक्शन। मैम उस पे लेबल क्या, मतलब उसमें हेडिंग क्या डालना है? सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ओके Ma'am, I am showing you yesterday's homework. Yes, beta. Diya, your voice is little bit low. Ma'am. Okay, perfect. Diya, perfect. Okay. Yes, Ansh, you are ready. मैम आप जब दिखा रहे थे वो ड्रॉ करके, तब मैंने खुद से ड्रॉ कर दिया, दिखाओ। ओके ठीक है, नाइट टाइम भी कर लो बेटा, नाइट टाइम। मैम वो आप शेयर करो ना व्हाइट बोर्ड। हाँ, आई विल डू दैट। अच्छा, व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी बेटा? अभी व्हाइट बोर्ड की जरूरत है क्या? सिंपल इमेजिंग करो। चलो मैं जो बोल रही हूँ वो सिर्फ आप ड्रॉ करो। अभी डे टाइम है तो क्या क्या होगा, सनलाइट होगी, लैंड होगा और सी होगा। ड्रॉ करो, इमेजिनेशन से ड्रॉ करो। एक साइड पे ऊपर बनाओ सन, नीचे लैंड बना लो फटाफट से। और सी बना लो। सी के लिए आप वेव्स दिखा दो। Ma'am, I have done second one. Yes beta, if you are done then just keep it there only. बाकी सबका कंप्लीट हो जाने दो। ओके, डे टाइम है, यहाँ पे देखो मैं वाइस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। डे टाइम है, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सन। ओशन होगा हमारे पास एक,
और दूसरी साइड पे लैंड होगा, उसको लेबल कर दो। अब यहाँ पे गरम सबसे पहले कौन होगा, कौन हो रहा है गरम, लैंड, तो हमने यहाँ पे एरोस दिखा दिए। ओके, अब यहाँ पे कैसा प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे गरम हो रहा है तो यहाँ पे कैसा होगा, L फॉर लैंड था, ठीक है, डे टाइम के टाइम में L फॉर लैंड एंड H फॉर हाई। अब यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में वो हाई, यस, यहाँ पे लैंड लिख लो और यहाँ पे सी लिख लो, यहाँ पे वार्म एयर लिख लो और यहाँ पे डेंसर लिख लो। इतना तो हो गया, ये हो गया हमारा डे टाइम। अब नाइट टाइम में अगर ये मून है, सेम स्ट्रक्चर, नाइट टाइम में अगर मून है तो पहले यहाँ पे हम लेबल करेंगे दिस इज मून, और ये सी और लैंड तो वहीं पे रहेगा, सिर्फ कौन सी चीज चेंज होगी, अब कौन गर्म है यहाँ पे, लैंड धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी। पानी इजीली गर्म नहीं होता, तो अब पानी जो गर्म था इट विल शो अस दैट वार्म एयर, तो यहाँ पे कैसा प्रेशर हो जाएगा, लो, और यहाँ पे ये डेंस हो जाएगा। फाइन, बस इतना ही बनाना है और कुछ नहीं। फाइन, ये कंप्लीट कर लेना बेटा घर से, ये आपका होमवर्क। मेरा सेकंड वन हो गया, कैन आई शो? हाँ, आई विल सी, अब सबका डायग्राम जिसका भी बाकी है मैं बाद में नेक्स्ट सेशन में देख लूंगी। फाइन बेटा, यस, तीर्थ, अंश, सबका नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फाइन, इज इट क्लियर? आज आराम से बैठ के ये दोनों का डिफरेंस बहुत ही क्लियरली मैंने समझाया है। मैम अभी तो रफ स्केच बना दिया है, बाद में अच्छे से बना दूंगा। इनफ है बेटा, वैसे ही चाहिए। फाइन, ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। विल Ma'am, this. Yes, perfect beta. Yeah, I will see all of you, I will see all of your diagrams in next session. Okay, bye beta. Bye.